Students, today we are going to learn basic concepts in geometry. This is the first chapter of geometry. इस चैप्टर में हम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। स्टूडेंट्स, क्या आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है, ये चैप्टर रीड किया है? अगर आपने नहीं रीड किया है तो अब मेरे साथ रीड कीजिए और विथ रीडिंग हम इसे समझेंगे भी। सारे जो हमारे कंसेप्ट्स हैं हम रीड करके ही समझने वाले हैं। Did you recognize the adjacent picture? It is a picture of pyramids in Egypt built 3000 years before Christian era. How the people were able to build such huge structure in so old time? It is not possible to build such a huge structures without developed knowledge of geometry and engineering. क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? कोई भी स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक परफेक्ट प्लान चाहिए। बिल्ड अप करने के लिए आइडियाज चाहिए जिससे हम ह्यूज स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। Look here, students. The word geometry itself suggests the origin of the subject. It is generated from the Greek words geo, earth, and metria means measuring. So, it can be guessed that the subject must have evolved from the need of measuring the earth, that is land. Means what? Geometry. जब तक हम लैंड मेजरिंग हमें कैसी करनी है, कौन सा काम हमें कहाँ तक करना है, कौन सा स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे कैसा बिल्डअप करना है, ये समझना बहुत ही जरूरी होता है जब हम कोई भी ह्यूज स्ट्रक्चर और कोई भी स्मॉल स्ट्रक्चर ऑल्सो अच्छे से बना रहे हैं। तो जो हम स्ट्रक्चर डेवलप बिल्डअप कर रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से रीड करते करते ही सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं। ये चैप्टर रीड करना क्यों जरूरी है? विदाउट रीडिंग, विदाउट कंटिन्यूएशन, अगर आपने कोई भी इसमें से पार्ट स्किप कर दिया, कोई भी चैप्टर में का कोई भी अगर आप पार्ट स्किप करते हो तो आगे का कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। और हमारे बुक में सारे कंसेप्ट्स ऑलरेडी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, बस हम रीड नहीं करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। Geometry was developed in many nations in different periods and for different constructions. The first Greek mathematician Thales had gone to Egypt. It is said that he determined height of a pyramid by measuring its shadow and using properties of similar triangles. Ancient Indians also had deep knowledge of geometry. In Vedic period, people used geometrical properties to build altars. Altars means what, students? Altars means the place of worships. Just as temple, different types of temples we seen from ancient India. The book Sulabh Sutra describes how to build different shapes by taking measurements with the help of a string. In course of time, the mathematicians Aryabhatta, Varahamihir, Brahmagupta, Bhaskaracharya and many others have given valuable contribution to the subject of geometry. हमारे देश में भी जो हमारे पूर्वज थे, जो ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी जो वैल्यूएबल नॉलेज है, जो वो जिस प्रकार से मेजरमेंट्स करके स्ट्रक्चर बनाते थे, अल्टर्स मीन्स मंदिर बनाते थे, तो वो सब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सुलभ सूत्रा इस बुक में उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो आपको यहाँ पे ये बात तो कंसेप्ट समझ में आई होगी कि हमें ज्योमेट्री की जरूरत क्यों है। फॉर मेजरिंग द लैंड मीन्स फॉर द ज्योमेट्री basic concepts are point, line and plane. So we see what is point, line and plane.
We do not define numbers. Similarly, we do not define a point, line, and plane also. These are some basic concepts in geometry. जैसे हम नंबर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, सिमिलरली हम पॉइंट, लाइन और प्लेन को भी डिफाइन नहीं कर सकते. These are some basic concepts in geometry. Lines and planes are sets of points. Keep in mind that the word line is used in the sense straight line. तो हमने देखा पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये जो है ये कैसे है, अनडिफाइंड कंसेप्ट है. जैसे नंबर अनडिफाइंड कंसेप्ट है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं. पॉइंट मीन्स dot that made by any sharp tip. This is means the point. Point has no size. Okay, this is our next concept. This is our point. And point has no size. Now next, line. A line is defined as something that extends infinitely on both directions. Line has no width and is one dimensional. Line has no width and is one dimensional. Third, plane. A plane is a flat two-dimensional surface that extends infinitely in all directions. And always remember, line and plane are the set of points. Do you understand the concept of point, line and plane? स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इजी कंसेप्ट्स थे, लेकिन हमें चैप्टर अच्छे से डीपली समझने के लिए मैंने ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं और कंसेप्ट क्लियर करने हैं. हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. आपको आज का होमवर्क है कि आपको पॉइंट की, लाइन की
और प्लेन की डेफिनेशन लिखकर लर्न करनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमें उनमें ये कंसेप्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो आगे के एक्सरसाइजेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।